side did say, Assalamu alaikum, Sir Tahir. How are you? Okay. Assalamu alaikum, everyone. This is me, Sindhu Sinwar, and I hope everybody's doing fine, happy at their place. As you know, today we are talking about International Education Day, something that is very important and very pertinent if you talk about education. You've always seen me in the light of reimagining education and how we talk about education and how much it has taken all of us forward, and what are the benefits and advantages for educationists, educators all around the world once they come all together, and talk about the field of education on our show. Today is the International Education Day. As you know, UNICEF is actually celebrating it by remembering 6.1 million and around 1.7 billion students who have been affected by the pandemic. It's something that we all are very, very, what should I say, unfortunately affected by. And something that has been a very pertinent situation amongst all of us is that we as a nation have stood up and fought with the pandemic really well. We tried our level best to overcome it. And I would, first of all, take this platform and thank Greenwich University for taking the initiative in 1 week, making sure all our courses, all our semesters were, on time. We celebrated everything. We made sure that our education was not on completely on stake. We completed 2 semesters over the pandemic. Now we're almost starting off with the third one is also ending. So before that, further ado, thank you so much, Greenwich University, for this platform, and I'll continue with my guest of the evening. First of all, I would say Assalamu alaikum to Sir Tahir Shah. He is the chairman of private school sectors. Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm fine. Walaikum salam. And I have Ms. Shazia Nasir. She's the head of English Linguistics department. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक हाउ आर यू इन दिस Alhamdulillah. And I have Miss Dr. Faryal Razak with us as well. Assalamu alaikum, doctor. How are you? Walaikum salam. I'm perfectly all right. Thank you so much. Thank you so much, everybody, for joining us today and being a part of this very, very special event that we had. Before I start off with the question and answers, I would first of all give my heartiest congratulations to all three of you because you all have been, associated with the education, what should I say, sector, and you did do your job so well. So thank you so much to all the teachers and especially Ma'am Shazia, because Ma'am Shazia is our teacher as well. We've seen her giving us classes, making sure that we complete our work, boosting us up when we were out of time in our assignments. So thank you so much, Ms. Shazia. A big salute to you and all the educators out there who have done a tremendous job. They have learned technology over just in, what should I say, 2 or 3 days, and they've come back so stronger. या Uh, this webinar is actually celebrating the uncapped heroes, the educators, the people who were the most affected, I would say, the occupation that was affected the most when the pandemic came. So I want to start off with all three of you, and I can take Sir Tariq Shah first. That kindly share your insights. That how much did you see, or the uncapped heroes actually reflecting and working on? Yes, thank you so much. Actually, I just realized that I'm online from my brother's phone, so laptop. So the name was Tahir over here. Now it's good. It's Saeed Tariq Shah here. Yeah. So, the heroes of our education sector, I would say, it's our teachers, because coming from the classrooms to the digital classrooms, it was really very difficult. And it was difficult for the school management as well, to train them, to tell them how to come on the online sessions. And it was really difficult for teachers because they were working on conventional method. They were used to कि class में बच्चा जो सामने हो तो eye contact हो उनके साथ, और they were used to कि उनके साथ question answers करें. But coming on the digital side, तो उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम यही आई कि they have to communicate on one way. They were just giving the lectures, and they didn't know कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. और ये एक बड़ा चैलेंज था. और इसके साथ साथ जो है, स्कूल मैनेजमेंट का तो एक था ही चैलेंज कि उनको ट्रेन करना पड़ा, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा. लेकिन इसके साथ साथ मैं एक, जैसे कहते हैं ना, हिडन हीरोज कह लें, कि एक जिनको लोग रियलाइज नहीं करते, वो हैं पेरेंट्स.
क्योंकि उन पेरेंट्स ने भी जो है वो बच्चों को उन ऑन डिजिटल क्लासरूम्स के अंदर तैयार किया, बिठाया, और उसके साथ साथ उन पेरेंट्स को भी बैठना पड़ा बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए, क्योंकि यूजुअली जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो इतने या तो लर्नेड नहीं होते, बहुत से मेजोरिटी केसेस में, दूसरी टेक फ्रेंडली नहीं होते। मेजोरिटी तो खैर टेक फ्रेंडली है ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को लैपटॉप्स, मोबाइल, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जूम जूम हमारे लिए एक बहुत ही नई चीज थी, और गूगल क्लासरूम तो बहुत ही नई चीज थी। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ी। तो इसके अंदर सबका कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई कहे कि सिर्फ बच्चों ने, स्कूल मैनेजमेंट ने या टीचर्स ने किया, तो इसके अंदर सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, जिसने सबने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया। So true, sir. I totally agree to it. Thank you so much, Sir Tariq, for giving this tribute. I myself am an educator. I can totally relate to how much you are, reflecting on the role of educators. And definitely, I would say the parents' role was something that was very, very pertinent. A lot of parents had to, make sure that they were working from home. Their kids were taking their classes from home. So definitely, that was a huge challenge for the parents as well. Dr. Faryal, what do you have to say about this? She's mute. Okay, now can you hear me? Okay, I'm sorry, I don't know the technology issues there. So that was a practical demonstration of how the classes went actually. So actually, it has been challenging because it also showed the bare necessities that should have been there, especially because I teach at a university, and not all the senior teachers were very tech savvy. And apart from that, if you even if you were tech savvy, there were issues of internet and electricity, and there were a host of other issues that magnified this problem. So in all this area, jaise Sayyid Tariq Saab ne rightly point kiya, the parents' role, the teachers, there was a lot of stress which was not there in the usual days were placed on the teachers, because in the end the teacher was the one accountable for taking the classes, not the school administration. So if there were the internet of the teacher was not working, if the students were not able to log in, or they had issues, like few of my students, I teach at Qaid Azim University, and few of my students, they live in Afghanistan or in the northern areas, and they say that, madam, we don't even have 2G. We come to the mountains near the where there are phone signals available to just take, so they just have time for WhatsApp, they can't watch the live lectures as well. So there had been such grave issues for most of the students, because even my students, those that were living in Rawalpindi, Islamabad, there were certain areas they were facing these internet issues. So we had issues of technology, and we had issues of reachability and inclusivity. So these things all magnified it, and the teacher's role was like it was a never ending job. You're getting WhatsApp at 12 o'clock, 12 a.m., and the class was never ending. So I think it was pretty challenging for the teacher, because now she had to take care of the house, because in the initial phase, the house help were not even allowed in the houses. I mean, people were really careful, so they had additional responsibilities, and the never ending jobs, and the Zoom thing, I call, I don't call it, but we that the term that zoomies, so we call ourselves the zombies of the new generation, using so much Zoom that we all become like kind of zombies. So this is the new reality that we had to face. Definitely. I would take your point of being a Zoomy and talking about the biggest challenge that you actually highlighted, ma'am, is about the internet. That was a huge issue. A lot of students, even at I am a teacher of a private school, but then again, there was less availability of gadgets. They did not have availability of gadgets. The internet was not working well because of rain as well. We had a huge rainstorm. Internet got disconnected. Almost 1 week school was shut down because of the internet problems all over. Thank you so much for pointing that out, Dr. Faria. Ma'am Shazia, you tell us, because you have been our teacher and you have seen us struggling and kind of Yeah. tolerating us. How has that been? Okay, thank you, Sandas. We are because of you guys. आप लोग हैं तो हम हैं, ठीक है.
अच्छा, थोड़ा सा I just want to give you a bigger picture of this thing, what happened. Obviously, it has been a chaotic situation. ठीक है, since the start of 2020, मार्च में schools बंद हो गए थे. ठीक है, यूनेस्को ने जो रिपोर्ट दी 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल. नाउ 5.4 million students जो हैं they live in children I'm talking about, they live in South and West Asia. Okay, अब इनका ऑलरेडी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग नेशन. ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम. एजुकेशन का लिटरेसी रेट हमारा कम है, हमारा लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा. तो उसमें ये पेंडेमिक ने आके तो और वर्स्ट कर दी सिचुएशन. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट the Zoom, we are talking about the internet, we are talking about all those facilities which are available to the elite schools या थोड़े middle level school है. ठीक है, मैं जब ये कह रही हूँ ना कि ये chaotic situation हुई है एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो हमें if you just consider the masses, हमारे masses they are living in the rural areas. ठीक है ना, वहाँ के बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो उन बच्चों को ही. हमारे जो मिडिल लेवल बच्चे हैं या उससे ऊपर हैं या थोड़े, तो उनको ये है कि चलो उनके पास कोई फोन्स हैं, उनकी, हाँ ऑब्वियसली यू नो आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ने आई थिंक सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने विद इन अ वीक ना सिर्फ कनेक्टिविटी इश्यूज और जूम और ये सब चीज़ें, हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया. ना सिर्फ ये बल्कि हमने एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लिया और आज तक ले रहे हैं और माशाल्लाह बहुत स्मूथली वो एग्ज़ाम्स चले हैं. सो जहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिविटी की, वहाँ पे थोड़ी सी हमारे ये हुआ है कि यू नो हर प्रॉब्लम में एक कोई अपॉर्चुनिटी भी हमें देखनी चाहिए. और वो ये हुई है कि हम सब जो हैं we know how to operate now on Zoom and Google Class, और जिनको नहीं भी आता था उन्होंने भी शुरू कर दिया. अच्छा, जो गांव के बच्चे हैं, इवन क्योंकि मेरी आजकल रिसर्च चल रही है तो आई एम मोर इनटू स्टूडेंट्स लिविंग इन रूरल एरियाज, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाके कोशिश कर आके कुछ ना कुछ कर ही लिया. लेकिन स्टिल इट इज उन्होंने काफी लॉस उनको हुआ है. बच्चों को एजुकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है. और जो आपके यूनेस्को के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी एड्रेस किया था एंड ही हैज पॉइंटेड आउट दिस थिंग. उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा एजुकेशन में लॉस हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड. नाउ इफ यू सी द टर्शरी एजुकेशन, सबसे ज्यादा दुनिया भर में जो लॉस हुआ है वो हायर एजुकेशन को हुआ है. एनरोलमेंट में आपको बताऊं, मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कि ये यूनेस्को की ही है कि 3.5% डिक्लाइन आया है इन एनरोलमेंट, resulting in 7.5 million fewer students who have enrolled around the world. मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो कि इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसको $500 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है. सो ये तो चीजें हैं साथ के साथ, बट उनका सोल्यूशन किस तरह. और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हमें आउट ऑफ, मतलब हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर हमारा अगर कोविड का आप देखें तो अभी 1700, 2000, 2500 आते हैं, जो कि ठीक है ज़्यादा है. लेकिन एज कम्पेयर टू इंग्लैंड या अमेरिका, इंग्लैंड तो हमसे छोटी उनकी आबादी है ना, लेकिन आप देखें कि उनका कितना ज़्यादा है. तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन भी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ कुछ अल्लाह का भी मदद है. लेकिन ये है कि बहरहाल ये जो इश्यूज हमारे पैदा हुए हैं वो हमें सब एजुकेशनिस्ट को मिलके करने हैं. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट कि टीचर्स जो हैं दे आर द हीरोज. टीचर्स जैसे तारिक शाह ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, कि उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है. So Allah karega inshallah ta'ala, we are going to be out of this pandemic soon, and we will be having face-to-face classes because there is no alternative. Especially आप जैसे सुंदर साहब अगर छोटे बच्चों को लेती हो तो आपको पता है कि बच्चों को तो जब तक हग ना करें और उनकी आप वो ना करें तो उनको वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती है. So ये तो issues हैं.
जी I would actually agree to your point and take it forward that, especially for me, I have been a teacher for fifth graders, and their response is so necessary for me to go forward in the lesson, that because usually in university it's like we just nod and you realize, "Ki, हाँ, okay, fine, my point is clear." But then again, when I talk about the younger ones, I need them to say yes, or यस talk amongst them, or they ask me the question, or जैसे बिल्कुल बिल्कुल परेशानी कुछ कुछ फीचर्स तो आए ताकि पता चले बच्चे को समझ आ रहा है. This was the biggest issue for us teachers as well, the primary level teachers, that we had to face and we had to overcome. So now talking about, the pandemic has brought forward a very fair share of changes, uh, and it has affected the education sector a lot. You all have headed, different departments. You've headed the English department. She's headed, her college, university department is Dr. Faryal. Sir Tariq was always on phone with somebody or the other, telling him the problem, asking him when is school opening. So you guys have headed things. How much Sundar, res- एक मिनट just to add over here कि if you just open the news, Tariq is everywhere. On every channel you see Tariq. So I've been, teasing him that soon he is going to be in Hollywood. So so Tariq is everywhere and he has a lot of responsibility, I must say. Yes. I would say so true, मैम. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फिर आप आंसरेबल भी ज़्यादा लोगों को हो जाते हो, फिर सब आपके ही आंसर का वेट कर रहे होते हैं. Talking about Yes. this, you guys, now you tell me, how much has it been different, because now you guys are actually heading different departments. तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है, आपसे हर कोई सवाल पूछता है, आपको हर कोई आंसरेबल मांगता है. I'll start off with Sir Tariq, because obviously, as you said, that he was the highlight of that particular of this whole pandemic. So sir, आप मुझे बताएं, how hard was it to, conquer it all? Hello, now can you hear me? Sorry, I was just trying to unmute myself. So can you repeat the question? Sir, I was asking you that because you have headed different all three of you are heading different departments, and you guys are responsible for a lot of things. Having responsibility of so many things makes you answerable to so many people. So many people look up to you. They're like, "नहीं sir, आप बताएंगे, आपका क्या stance है, आप किस तरह लेके चलते हैं?" तो how hard what is, was it? Because जिस तरह हम educators का 24 घंटे phone बजता रहता होगा, it must have been the same with you as well. Your phone must have, been ringing all the time. So what do you have to say about it? बिल्कुल, थैंक यू. मैं आई वुड जस्ट से कि इट वाज जस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि कमिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन टू फॉर एवरीवन कि पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, और आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें कि स्कूल ओनर जो है उसको कोई मसाइल हो जाए, या फिर वो जो है आपसे नाराज हो जाए. और सेकेंडली इन सब चीज़ों के अंदर आपको गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना है, बिकॉज दिस इज अ हार्ड टाइम. और आपको एक जो से कहना एक स्क्वायर शेप था, हर कॉर्नर पे एक कोई ना कोई डिफिकल्टी थी, और चार स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलना इट्स डिफिकल्ट. इवन मैं आपको बताऊं, डेवलपिंग ऑनलाइन सॉल्यूशंस ये भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स हैं. इफ यू गो टूवर्ड्स इलीट क्लास तो वहाँ पे जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, ये सब चीजें हो सकती थी. वहां पर अलग इश्यूज थे कि उनको केटर कैसे करना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है. कमिंग टू द अदर साइड, वहां पे ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती. वहां पर एक अलग सिनेरियोज हैं. वहां पर इंटरनेट तो दूर की बात है, वहां लाइट के इश्यूज हैं कि वहां लाइट होती ही नहीं है. मतलब इन सब चीजों के साथ केटर करना और उन सबको साथ लेके चलना, एक पॉलिसी लेकर आना जिसमें सब पढ़ सकें, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है इसके अंदर बच्चों की हेल्थ तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हाउ टू कंटिन्यू द एजुकेशन ऑफ आवर नेशन ये एक बहुत बड़ा टास्क था. शायद यूनिवर्सिटी लेवल पर ये बहुत आसान था, या एक तरह से कह सकते हैं ये हो सकता था, इशू रिजॉल्व हो सकता था. लेकिन स्कूल की तरफ अगर आप आए, तो स्कूल्स के अंदर जो है बच्चे इतने ट्रेन नहीं होते. उन बच्चों को ट्रेन करना, फिर उनके बाद उनके पेरेंट्स को ट्रेन करना, टीचर्स का तो इशू था ही, वो तो खैर स्कूल्स ने ओवरकम किया ही इसको. लेकिन ये सारे सिनेरियोज थे. इन सब सिनेरियोज के अंदर डिसीजन लेना एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एजुकेशन कम्युनिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस. लेकिन उनके अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और उनके साथ एसोसिएटेड पेरेंट्स हैं, तो उन सब की पॉलिसीज को साथ लेके चलना
एक डिफिकल्ट टास्क था। अगर हम इन सबको सपोर्ट करते तो गवर्नमेंट एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी। गवर्नमेंट को हेल्थ इश्यूज में ज्यादा फोकस करना था, उनको सबको साथ लेके चलना था। और जिस तरह पेंडेमिक के साथ केसेस बढ़ते जा रहे थे, इसमें लोगों को कन्विंस करना कि इकोनॉमी तो है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज जरूर कहता हूँ इसके अंदर कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया, लेकिन उस चीज पे फोकस नहीं किया जिसको आगे जाके इकोनॉमी संभालनी है। वो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, तो वो इकोनॉमी कैसे संभालेंगे? तो लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म दोनों को साथ लेके चलना चाहिए था। तो बस इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अभी हमें नहीं पता कि पेंडेमिक कहाँ तक चलेगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि किस तरह हम इसमें। मैं तो कल भी एक मैं मीटिंग में था, तो कुछ स्कूल ओनर्स मेरे साथ थे, तो मैंने उनको यही एग्जांपल दी। मैंने कहा डिफिकल्टीज हैं, सिनेरियोज बड़े मुश्किल हैं, लेकिन हमें इसमें स्विम करना है। और जो अच्छा स्विम कर जाएगा वो आगे जाके एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा, सेफ प्लेटफॉर्म पे। That's so true, sir. I would say thank you so much. You actually connected all the dots really well. और आपने जो बातें बताई बिल्कुल, I would say because obviously आपने सबसे I would say difficult social class से लेके higher class तक देखे थे सबके problems, और आप लोग को पता था किस तरह से मुश्किलात आ रही हैं. Talking to you, मैम फरियाद, आप मुझे बताएं how much hard it was because आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि हमारे साथ के peers जो थे, they were saying that let's not take this semester this time. Online क्या पढ़ेंगे, क्या समझ आएगा? What do you have to say about it? कि क्या you had to face the same thing? Absolutely. I mean, this was a worldwide phenomena. और आप अगर universities की बात करते हैं तो look at the semester fees. I mean, Pakistan is a very poor country. Not all the parents can afford the semester fees. And there were people who contacted me, I mean, from my acquaintance, and they say कि जी हम इतना afford नहीं कर सकते, ये बच्चे का semester fees ना करा दें, because online में तो हमें कोई value नजर नहीं आ रही. ये भी जाहिर बात उनकी हार्ड अर्न मनी है, एंड दिस इकोनॉमिक क्राइसिस दैट पोज्ड ऑल ओवर द नेशन, एक इट वाज अ रियलिटी. आई मीन, अच्छे अच्छे लोगों के कारोबार बंद हो गए, अच्छे अच्छे लोगों के रोजगार बंद हो गए. सो पीपल हैड इश्यूज, पेइंग द बिल्स. उनको अपनी लाइवलीहुड की पड़ी हुई थी. तो जहां पर आपको फूड रखना है या बच्चे की सेमेस्टर फीस देनी है, तो आई मीन द चॉइस इज प्रीटी क्लियर व्हाट हैड टू डू. एंड दैट एक्सप्लेन्स, इवन जैसे अभी मैडम शाजिया ने बताया कि एनरोलमेंट ऑल ओवर गिरी, उसकी वन ऑफ द रीजन वाज दैट, ऑफ कोर्स. और हम इस सारे मामले में जो चीज बहुत ज्यादा उभर के सामने आई, वो एजुकेशनल इनइक्वालिटी थी. जैसे तारिक साहब ने भी बात की, शाजिया ने भी बात की, कि दिस इज द हाई टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों के जो सिस्टम और जो चीजें बन रही हैं वो सिर्फ एलिट्स के लिए बने जा रही हैं. अभी भी ग्रास रूट लेवल पे या पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट के लिए, जिनके हम इंक्लूजन की बात करते हैं. ना पाकिस्तान में देखें तो 46 मिलियन स्टूडेंट जो थे वो घर बैठ गए पेंडेमिक के बाद. और उससे पहले भी 22 मिलियन जो स्टूडेंट्स थे, they were already out of institutions and schools. They were already out. तो आप इतना बड़े जब लोग आपका एक स्टूडेंट और वो इन्फ्लक्स घर बैठ गया, और पेरेंट्स जो थे उनमें से हाउ मेनी पेरेंट्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और लॉस्ट देयर, जो बेचारे रोजगार दिहाड़ी का या इस किस्म का कारोबार करते थे, जिनकी मतलब डेली वेजेस वहां से आती थी. So how can you expect them to pay that? Similar case was with the universities. तो ये चीजें अब हमें अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो इनइक्वालिटीज ऑफ एजुकेशन है, जिससे बेयर मिनिमम होके, मतलब बेयर होके हमारे सामने आई कि हम लोग कर क्या रहे हैं. वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन द आईटी. पाकिस्तान का आईटी सेक्टर इज, अभी अगर आप देखें तो फ्रीलांसर्स को देखें, या आप अपना वो देखें, तो पाकिस्तान का 6th लार्जर पूल ऑफ freelancers is in Pakistan. And the startup Yes. system, why didn't we spend money on the startups to provide us the digital solutions? आप देखें, हर चीज के लिए आपको इंटरनेट नहीं चाहिए होता. यू कुड हैव यूज अ वेरी इजी एंड अ वेरी चीप मींस रेडियो. रेडियो पे आप अपने लेक्चर्स चला सकते थे अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड होते. वन ऑफ माई टीचर जो थी, डॉक्टर जैनब, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट. और इस पर जब मैंने किया, एंड बाय द वे लेट मी क्लियर, आई एम नॉट अ हेड ऑफ एट माई यूनिवर्सिटी, बट आई एम द सीईओ ऑफ द फर्म. एंड हमारा भी ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, एंड आई एम कंसल्टिंग फ्यू यूनिवर्सिटीज फॉर द डिजिटाइजेशन, एंड उनके सारे कोर्स करिकुलम को करती हूँ. सो आई नो द इन्स एंड आउट एंड द चैलेंजेस दे आर फेसिंग. सो
the issue is here that we need to understand कि ये जो हमारे इतने बच्चे हैं और जो चीज़ें थी इनको हम किस तरीके से साथ लेके चल सकते हैं, एक इक्वालिटी हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो वही बात है कि द रिचर गॉट रिचर इन दिस पेंडेमिक, द पुअरर गॉट पुअर इन द पेंडेमिक। सो इट्स एन इकोनॉमिक वॉर एक्चुअली। और एक चीज़ जो मेरा बहुत बड़ा एतराज़ रहा सारी चीज़ों में कि वी आर सो फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी, वी आर सो फोकस्ड ऑन द कि भी बच्चों का साल जाया हो रहा है, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज। भाई जिंदा बचेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अभी आप उनको आई मीन nobody understood the mental health issues of the teachers, nobody understood the mental health issues of the children. It was not just why the system is failing, this online system, because जब पहली बार कोविड के लिए शटडाउन हुआ तो we were not prepared, but जब next time shut हुआ we were still not prepared. I mean, to be honest, I mean, कहीं पर हमारी कुछ कमी रह गई। इस बार जब शटडाउन हुआ तो we should have been very good, very well prepared. We had a lot of months and we know. और even मैं आपको अब भी फोर्सी करके बता सकती हूँ कि बिकॉज स्कूल ओपनिंग का डायरेक्ट तलक इन्फेक्शन रेट से है। ये स्पेनिश फ्लू की स्टडीज देखें आप, एशियन फ्लू की स्टडी देखें, 90% ऑफ द इन्फेक्शंस वर curtailed when the institutions were. तो वी आर नॉट रिसर्च फोकस्ड, हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रुझान रिसर्च की तरफ नहीं है। एंड बीइंग अ रिसर्चर, आई मीन आई ट्रूली एग्री कि अभी तो थिंग्स आर अबाउट टू कम। ये थर्ड, खुदा ना खासा, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मेरे सब अंदाजे अंदेशे गलत हों, मगर आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड wave that is coming up after reopening of the school? So And true, we're yes. still not prepared, and we're still not prepared. So it's high time to think and sit down कि आप कब तक सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे, रिस्पॉन्स भी करना सीखिए। आप हर चीज को सिर्फ रिएक्ट ना करें, अब आप उसको एक एजुकेटेड रिस्पॉन्स लें। तो हर चीज हमारी हैपेजिड नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एकेडमिशियंस की। तो दैट स्पीक्स अ लॉट, यू नो, वॉल्यूम अबाउट आवर ओन इनकॉम्पिटेंस, एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कहीं पर लैग कर गए, कहीं पर हम सिर्फ रिएक्ट करते रहे हैं। तो हम प्रोएक्टिव That's so अभी true, भी miss. हमारी I would अप्रोच नहीं। say, thank you so much for highlighting this very big, factor. That was that the biggest problem, and I would say, because right now I am also, in my research, what should I say, partitions, and I see that the biggest thing is that I did not see research papers from Pakistan when I was talking about how applications are working. Right now, my research is about how different applications can help students in their English pronunciation and their vocabulary. Uh, and I did not see much English researches happening in Pakistan on these particular applications that are completely free and available for students, and they can learn from them. मिस शाज़िया, आप क्योंकि हमारे साथ थीं, आपने हम लोग को देखा, आपने अपने अराउंड अपनी पीएचडी की रिसर्च को भी देखा, जिस तरह से you actually deal with disabled children and how much, what should I say, which is specially abled, I wouldn't even say, I take my word back, specially abled children. तो मैम आप मुझे बताएं कि how much was it a big factor for you, and what changes did you see? Yeah, that was, I think that hit them very badly. इसलिए सुंदस के आउट ऑफ, जैसे फरियाल ने बताया ना अभी के 1.6 बिलियन चिल्ड्रन दे वर आउट ऑफ स्कूल, उसमें से 25% तो कम्प्लीटली उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और उन 25% में से जो 50% बच्चे हैं उनका जब स्टेटिस्टिक्स आए तो पता चला दे वर differently abled, or they have certain specific disability, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो नाउ जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं ना, उनको जूम पे टीच करना या पढ़ाना इज रियली, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड ऑल दोज टीचर्स हु आर डूइंग दैट वंडरफुल जॉब, I salute to all those teachers that they are spending hours and hours in front of the, and of course their parents are sitting. Now if a child is ADHD, attention deficit hyperactive disorder का वो बच्चा है, वो 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा वो एक जगह नहीं बैठ सकता. How can you expect an ADHD child to sit in front of the computer for an hour or so, or even for half an hour? उसको तो यूं चीजें चेंज करनी है ना, अच्छा अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना. तो वो जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ मिलके, ऑब्वियसली पेरेंट्स दे प्लेड अ रोल, मेजर रोल, और उन्होंने उनको इस तरीके से ऑक्यूपाई रखा. सो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, डेफिनेटली उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट उनके साथ हुआ है. नॉर्मल बच्चों को हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि दोज हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उनके तो बहुत ज़्यादा. और जैसे डॉक्टर फरियाल की बात बड़ी मुझे प्यारी लगी है कि मेंटल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ की हम बात नहीं कर रहे. मेंटल हेल्थ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनकैप्ड की एजुकेशन. जो टीचर्स हैं हमारे, हीरोज जो हैं हमारे, आप ये देखो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हो, चाहे वो मिडिल लेवल स्कूल्स हो, चाहे वो एलीट स्कूल्स हो, टीचर्स का स्लैश हुआ है जी. आपकी अब आपकी जरूरत नहीं है, यू मे कम आफ्टर. तो मतलब ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्कूल ओनर्स एज वेल, बिकॉज दे हैव टू गिव द रेंट और वट एवर, बहुत सारी चीजें. बट टू थिंक ऑफ अ पर्सन हु इज अर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सिंगल मदर है, उसने अपने बच्चों को पालना है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल चीज है. अच्छा, सेकेंडली एक और चीज जो हाईलाइट मैं यहाँ करना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, स्पेशली ऑफ द, इफ यू टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड नेशंस, उनके यहाँ आप देखोगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फीमेल एनरोलमेंट 50% से भी नीचे चली गई है. वाई? बिकॉज वो कहते हैं जी, ਉਹ पंजाब में भी कहते हैं जी साडा पुत्र है, ऐसने ते ऐना ने ते जी सानू रोटी खवानी है, मतलब पैसे ये लेकर आएगा, बेटा है उसको पढ़ाएं, बेटी कोई बात नहीं, अभी बेटी को रहने दो, इसने तो चूल्हा चूल्हा ही चौंकना है. सो आप ये देखोगे कि इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, फिलीपींस हो, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक जो विमेन, जो गर्ल एनरोलमेंट है वो बहुत कम हो गई है. और अब आप आगे देखोगे कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, अल्लाह करे कि वैक्सीनेशन की वजह से हमारे सारे, और इंशाल्लाह बहुत दुआएं हैं, हर नमाज में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कि ये कोविड ख़त्म हो, वैक्सीनेशन आ जाए, सारों को वैक्सीनेशन मिल जाए, और उसके बाद हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें. क्योंकि वी कैन वेरी वेल फील द पेन सैयद तारिक शाह इज़ गोइंग थ्रू, कि हाँ मतलब इनके स्कूल ओनर्स के भी बड़े प्रॉब्लम हैं, एंड आई हैव सीन पीपल सफरिंग. डॉक्टर फरियाल ने भी जैसे बात की कि कितने लोगों ने जॉब्स लूज की हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाएं या दो वक्त की रोटी खिलाएं. तो वो कहते हैं कि जी हम दो वक्त की रोटी खिला देते हैं, बच्चा बाद में भी पढ़ लेगा, कोई बात नहीं, 2 साल जाया होंगे ना तो हो जाए. सो ये सारी True. चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट कर रही हैं, और जाहिर बात है जो हम टीचर्स हैं हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सुंदर वी Mhm. मतलब and I tell you one more thing. I think Dr. Faryal and Tariq would agree with me. इस पेंडेमिक ने टीचर्स की भी काफी पोल खोल दी है ना, कि who's, क्योंकि टॉकिंग फॉर So टू true. But आवर्स बात इज गोइंग टू करनी है, शो कि कौन सी हाँ, टीचर इफेक्टिवली पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है. एग्जैक्टली एफिशिएंट पढ़ाई है या नहीं है, एफिशिएंट पेडागोजी इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही, क्या वो बिल्कुल. एफर्ट डाल रही है नहीं डाल रही. दैट्स सो ट्रू. हाँ, दैट्स सो ट्रू. क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, आप चलो छोटे बच्चों को और मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के और मसाइल हैं ना, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, उनके क्विजेस लेना, उनके असाइनमेंट्स करना, उनको इंगेज रखना उस सेशन में, 2 घंटे के सेशन में इंगेज रखना. कुछ बच्चे बिल्कुल चुप हैं, सो गए हैं, मतलब कितनी मीम्स बनी हुई हैं हमारी इसमें. So, I have to be on my toes. I kept, you can ask your friends, I kept asking them, okay, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, ताकि वो सोए नहीं, वही जागते रहो. So that's how we are handling. And inshallah, जैसे तारिक ने कहा कि हम स्मूथ सेलिंग करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे गुजर जाएंगे. एंड let's pray together that we are out of this pandemic soon, because पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी पाकिस्तान के जो हालात पॉलिटिकल हों या एजुकेशन रिलेटेड हों, वो इतने कमज़ोर हैं कि मज़ीद हम जो है ना वो अगर ये गिरती हुई दीवार को अगर हमने खड़ा ना किया और थोड़ा सा भी धक्का लगा तो बहुत मुश्किल हो जानी है. That's so true, Miss. I would say that although Pakistan is trying to survive, and we are trying our level best as educationists, as people all over, our country, that how much we can, better our nation. But some way or the other, because of the, effects of our past, they're still here, they're still prevailing, and it's very hard. हम सबके लिए उस चीज़ से लड़ना, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना. You guys, आप सबने ये बात करी. I want to have the good part now. ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की तरफ चलते हैं. तो आप लोग मुझे ये बताएं, सबसे एफिशिएंट वे आप लोग को जो लगा कि ये बेस्ट वे था हमारे लिए, देखिए आप लोगों ने डिफरेंट लोगों को अपने साथ काम करते हुए देखा, आप लोगों ने खुद काम करा, तो क्या वो ऐसी बेस्ट एफिशिएंट चीज़ थी जो हम एजुकेटर्स, जो नए एजुकेटर्स हैं, उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकती है, कि वर्ल्ड एजुकेशन डे में आप लोग हमें ये एक अच्छी आई वुड से एडवाइस दे के जाएं. सो आई स्टार्ट ऑफ विद मैम फरियाल. मैम फरियाल, आप बताएं, व्हाट वुड इट बी?
देखें जी, टेक्नोलॉजी जहाँ पर एक बिल्कुल पेन इन द नेक भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी को हम लेवरेज भी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की एप्स अवेलेबल हैं जो कि आप आईसीटी के तौर पे, जो टीचिंग टूल्स के तौर पे आप ला सकते हैं। तो वी मस्ट लेवरेज दोज थिंग्स। अब जैसे देखें, हमने सिनोनिमस समझ लिया कि फेस टू फेस जो टीचिंग थी बस खाली लाइव जूम पे बैठ के, वो फेस टू, वो सिंक्रोनस क्लास नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड, देन अगेन रिसर्च बेस्ड हमारी अप्रोच नहीं है कि चाहे एक बच्चा है, उसका अटेंशन स्पैन इज एज प्लस 5 मिनट्स, तो अब आप सोच लें कि एक बच्चा मैक्सिमम कितना एक स्पेन दे सकता है। तो अब आप देख लें। और इसी तरह अब तो गूगल ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जो एवरेज अटेंशन स्पैन, जबकि ये इंटरनेट हाई स्पीड आ चुका है, इज 7 सेकेंड फॉर एन एडल्ट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 घंटे की क्लास वो बैठ के स्क्रीन को देखता जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। उसके लिए आप ऐसा करें कि कुछ वीडियोस बनाएं, कुछ एनिमेशंस बनाएं, कोई जो आपके लाइव होते हैं जिसको गेमिफिकेशन कहते हैं। ट्राई गेमिफिकेशन इन योर कोर्सेज। अपने कोर्सेज को अब आपको बैठ के ऐसे जो एसिंक्रोनस कोर्सेज हैं, आप उनकी तरफ जाएं। सो इट हैज टू बी अ ब्लेंडेड लर्निंग। थोड़ा सा लाइव लेक्चर है, बीच में कोई वीडियो आ जाती है, उसके बाद कोई अच्छा सा क्विज आ जाता है, पॉपअप क्विज हो जाता है, इट्स गेमिफिकेशन। कोई स्क्रीन पे मजे की चीज चले जा रही है। सो द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, आप एजुकेशन जो है उसको आप कायम रख सकें। तो देर, मैं एक्चुअली कंसल्टिंग ही इसी चीज की कर रही हूँ कि आप जो हैं अपनी ऑनलाइन जो डिजिटल एजुकेशन है, उसको आप किस तरीके से इंटरएक्टिव और किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, मतलब जो हमारी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, उसमें कोई भी आपका लेक्चर शुड नॉट बी मोर देन 7 to 8 मिनट्स। क्या हमारी टीचर्स इतने प्रिपेयर्ड हैं कि उन्होंने ये मॉड्यूलर काम किया हुआ है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। और एक कोर्स बनाने के लिए अगर आप जाके कोर्सीरा को देखें, और हम बात तो करते हैं कि कोर्सीरा की हम उस वक्त करते हैं कि हर कोर्सीरा का एक एक लेक्चर बनाने में उनको कोई 8 8 9 9 महीने लगते हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि एक टीचर 4 लेक्चर भी पढ़ाए और वो अब उसमें सारा कुछ भी डाले। सो आई मीन देयर इज सो मच वर्क। तो हमें थोड़े से रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ और थोड़े से यूनिवर्सिटीज को कंसल्टेंट्स हायर करने चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्किल which was never before needed in the university teachers training पे, टू बी ऑनेस्ट, लाइक व्हेन आई डिड माय पीएचडी, उससे लेके आज तक मेरी एक टीचर ट्रेनिंग नहीं हुई, एक एकेडमिक टीचर ट्रेनिंग नहीं हुई कि हाउ टू टीच वेल। सो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम वी शुड बी स्पेंडिंग ऑन स्पेंडिंग। बढ़ाएं आप टीचर ट्रेनिंग की, उनको टेक्नोलॉजी में लेके आए। व्हाट काइंड ऑफ एवेन्यूज आर देयर? इट कुड बी सो मच फन, दिस ऑनलाइन टीचिंग कुड बी इवन मोर, क्योंकि आपकी जो मेमोरी की जो रिसर्च कहती है कि जो विजुअली चीज पढ़ाई जाती है वो ज्यादा देर तक आप रिटेन रखते हैं, बजाय जो सुन के, जैसे क्लासरूम इंटरेक्शन में। तो वी कैन लेवरेज दैट थिंग, और इसमें बहुत ज्यादा वो है, और हम उसको कर सकते हैं। तो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी इज द फ्रंटियर ऑफ फ्यूचर। यू नो, आप टेक के बगैर अब एजुकेशन इज गोइंग टू बी सीमलेस। तो मैं कोविड आने से पहले अपने स्टूडेंट्स को कहा करती थी कि मैं जिंदा रही ना रही, 5 सालों में आप देखना ये इट वॉन्ट बी ब्रिक एंड वाटर एजुकेशन। तो जब कोविड आया तो कहते हैं मैडम एक सेमेस्टर में आपकी प्रोडक्शन पूरी हो गई। मैंने कहा मैंने तो 5 साल की की अल्लाह ने एक सेमेस्टर में पूरी कर दी। कि इट इज गोइंग टू, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज ऑनलाइन। लेट मी टेल यू, इट इज ऑनलाइन। तो वी हैव टू फाइंड बेटर वेज ऑफ डूइंग इट। तो हमें बेटर प्रिपेयर होने की जरूरत है, एंड देयर इज स्टिल सो मच रूम टू इम्प्रूव, और इसको हम लेवरेज कर सकते Ma'am, actually taking your point forward, and thank you so much, ma'am, for a very big highlighted and pertinent point that you discussed. One of the students as well, or the participants, is saying that thank you so much for your insights and how we keep our learners engaged throughout the lesson. As an educator, she will definitely try and implement these techniques in her lesson. And teaching techniques should be are always changing, and they should be given by a training or some way or the other by an institution. So I'll take this point forward and I'll thank my university because Alhamdulillah, we've been conducting free of cost courses for the teachers. We have had almost 3 to 4 trainings, all of free cost. We gave them certifications as well, and we tried to help the educators who were actually missing out on this bridging gap. So I thank Greenwich University for this, and then I move forward to Sir Tariq. Sir Tariq, आप मुझे बताएं वो बेस्ट टेक्निक क्या थी जिसने आपको हेल्प करा, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग तो इतना कुछ देख रहे थे, तो वो कौन सी टेक्निक थी जो आपको वो आई वुड से स्विम करके ले गई?
Thank you. Yes, I can hear It you. was a learning curve, and um, we learned a lot from this pandemic. इसमें मुझे बहुत सारे वेज नज़र आए जो स्कूल ओनर्स ने ऑप्ट किए इस सारी परेशानियों के बावजूद दे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड मैं पंजाब गया तो वहाँ पे स्कूल ओनर्स से बात हुई तो वन ऑफ द स्कूल ओनर्स हैड दिस आइडिया कि उन्होंने केबल पर चैनल परचेज किया and they uploaded the lectures on that channel and it was for everyone सब ने जो है बच्चों ने उस चैनल पर जाकर जो है ना उस टाइमिंग पे चैनल अपना करना था एंड दे स्टार्टेड टू स्टडी तो एक अच्छी यूनिक चीज थी जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी कि उन्होंने केबल चैनल परचेज करके टाइम स्लॉट और काम स्टार्ट किया ये तो खैर एक एक्सपेंसिव मोड था बहुत सारे स्कूल्स ने यूट्यूब चैनल बना लिए वहां पर दे स्टार्टेड अपलोडिंग देयर लेक्चर्स थर्ड चीज ये थी कि बहुत सारे स्कूल्स ने रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट कर दिए अगर कोई उनके पास एलएमएस वो मैनेज कर सके तो उन्होंने रिकॉर्डेड किए ताकि द स्टूडेंट्स कैन मैनेज टू सी द लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स एंड इंटरनेट पॉसिबिलिटीज बहुत सारे केसेस में जो ये सब चीजें इसलिए आई क्योंकि ऑब्वियसली गैजेट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शंस थी पेरेंट की रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि पेरेंट भी जॉब पर जाते थे तो आफ्टर देयर जॉब्स दे हैव टू sit with their students with their children and let them learn फिर उसके साथ साथ जो एक मुझे बहुत अच्छी चीज नजर आई कि एक होप है फ्यूचर में कि आर टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज हो रही है एजुकेशन फ्रेंडली हो रही है और लोग उसको एक क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं आई हैड द प्रिविलेज टू सी दोज कंपनीज एज वेल जिन्होंने जैसे यहाँ बात हो रही थी डॉक्टर फरियाल कह रही थी ग्राफिक के साथ उन्होंने लेक्चर्स प्रिपेयर कर लिए हैं मुझे अभी रिसेंटली प्रेजेंटेशंस मिली हैं मतलब बहुत अच्छी सी थी जो एक बच्चे कार्टून देखते हैं ना उस कार्टूनिक फॉर्म के अंदर उन्होंने लेक्चर्स बना लिए हैं एक एक रॉकेट यहाँ से आ रहा है साइंस लैब के अंदर एकदम से वो एंटर हो रहे हैं यहाँ केमिकल्स आ रहे हैं केमिकल ट्यूब्स हैं मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ उन्होंने ये लेक्चर्स तैयार किए तो ये सब चीजें हो रही हैं और इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट के आर स्टार्टअप्स आर कमिंग अप विद ग्रेट आइडियाज और एजुकेशन के अंदर जो है वो बहुत एक एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और स्कूल्स के अंदर जो है मैं आपको एक बात बताऊं मैंने बोला कि हाँ एक चीज ऐड करूं टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो इतने फ्रेंडली नहीं थे या वो रिस्ट्रिक्ट करते थे अपने आप को कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना इस पेंडेमिक के अंदर इतनी तेजी से हम टेक्नोलॉजी के करीब आए हैं, हम फ्रेंडली हुए टेक्नोलॉजी से कि अब हमें शायद चेंज होने में या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस जैसे फास्टली आती हैं, बहुत तेजी से चीजें चेंज होती हैं, तो वो उसको अडेप्ट करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अल्लाह से उम्मीद ये करते हैं कि ये पेंडेमिक बहुत जल्द खत्म हो और हम फिर एक अपने रेगुलर टीचिंग की तरफ आएँ, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊँ कि टीचिंग के अंदर जो है वो हमें बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं बच्चे इतनी तेजी से वो लर्निंग आउटकम्स की तरफ नहीं आ रहे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं और बच्चे जो हम देखते थे कि एक हाफ ईयर गुजर गया बच्चों के जो टारगेट्स होते थे एक स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम्स होते थे वो अचीव हो जाते थे लेकिन वो अचीव नहीं हो रहे तो ये इसको कवर करने में हमें बहुत साल तो लग जाएंगे लेकिन अल्लाह से यही उम्मीद है कि ये मामला बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा Thank you so much, sir. And I would say कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि especially being from the private sector, how well informed you are when it comes to different techniques. कि आपने मुझे अभी जो बहुत सारी techniques बताई, उसमें I would say हमारे poster making आ गई, हम लोगों ने जो बच्चों को start करवाया, animations आ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के आप from the heads के वो actually सब चीज़ें देख के खुश होते हैं ये हम लोगों को एक बूस्ट दे देता है कि हाँ हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो actually appreciate किया जा रहा है आई रियली अप्रिशिएट दैट मैम शाजिया आप मुझे बताएं बिकॉज देखें हम यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आपको बहुत तंग करते हैं आपको पता है तो यू टेल मी किस तरह से आपने इस जर्नी को इनोवेट करा और किस तरह से इसमें आप वो चार्म लाइन दैट इट स्टेज द वे इट इज Yeah. Um, by the grace of God, Alhamdulillah, I think the journey has been really smooth. मैं कोई बहुत कंप्यूटर चला लेती थी और सीखता लेकिन जब जूम आया तो वो सीखा एक चीज जो कि हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट we need to start adopting and adapting change
चेंज को हम इंसान ना डरता है, उसकी फितरत में है कि कोई नई चीज आती है ना तो उसको करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन अभी हम हमें उस अपने शेल से बाहर आना है, एंड वी हैव टू क्रिएट सच इनोवेटिव थिंग्स। और ये जो डिजिटल है वर्ल्ड, उसमें तो डेफिनेटली हमने कूद जाना है, और वो हमें सीखना ही सीखना है। अच्छा, मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई है, ये जब जूम एकदम से लास्ट 2020 के मार्च से जूम हमने किया, एंड I was at that time I was taking all ये business communication skills and English की classes. तो I also opted for जैसे मैंने स्पीचेस करनी थी, तो मैंने जब आर्गुमेंटेटिव स्पीच है या ये स्पीचेस, तो मैंने डिफरेंट भुट्टो की स्पीच दिखाई, मैंने मार्टिन लूथर किंग की स्पीच, तो उस तरह बच्चों को इन्वॉल्व रखा कि उनको वीडियोस दिखा दिखा के फिर ये है कि हमने डिफरेंट पॉप क्विज़ेस इंटरेस्टिंग किस्म के बनाए, जस्ट टू मेक द स्टूडेंट्स एक्टिव। प्लस आई ये शुक्र है अल्लाह का कि या तो आई एम वेरी हाइपर, कुछ शायद मैं हाइपर हूँ खुद भी कि मैं आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी हाइपर ऑल द टाइम। आई एंगेज माय स्टूडेंट्स बाय आई कीप आस्किंग देम। आई डोंट डू कि मैं बस एक लेक्चर में खड़ी हुई और मैं बोलती जा रही एक मोनोटोनस टोन में। नो, I just stop. I even start my lecture with a question. And क्वेश्चन से जब आप स्टार्ट करते हो, तो जैसे हमने ट्रेनिंग ली है, आई माई सेल्फ इज अ ट्रेनर, तो मैं यही कहती हूँ ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, बिकॉज जब क्वेश्चन होता है ना तो एकदम से वो सारे स्टूडेंट्स के एंटेनास भी खड़े होते हैं, हो नाउ वी हैव टू थिंक। सो वी नीड टू लेट द स्टूडेंट्स थिंक एंड क्वेश्चन। बच्चों को क्वेश्चन करने की आदत हमारे यहाँ नहीं है, उनको क्वेश्चन करने की आदत आपको these are the different pedagogies which we need to inculcate in our student, starting right from the very beginning। छोटे बच्चों से आपने स्टार्ट करना है कि वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करेंगे तो उनका जहन खुलेगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे वो आएंगे। सो मैंने भी इसी तरह की कुछ चीज़ें इनोवेटिव किस्म की हैं, और फरियाल के कहने पे और थोड़े हम ट्राई करेंगे कि गेमिफिकेशन वगैरह भी करने की कोशिश करें। कोई बंदर बंदर नाश्ता में आए, कुछ करे, कुछ उसको थोड़ा सा हम थोड़ा इंजॉय भी कराएं। एंड शी इज राइट, पता है, बिल्कुल ये बिल्कुल Yes, सही so बात है true. कि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे Exactly. यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, So true. in order to make him sit in front of the screen for an hour or so is not easy। It's not और easy. वो हर लेवल पे जो है वो हमें काम करने की जरूरत है। सुंदस, डॉक्टर फरियाल हैज टू गो, सो आई थिंक हम उनको थोड़ा जी जी मिस बिल्कुल। या मैम फरियाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट। आई नो हमने आपका बहुत टाइम ले लिया एंड आपको तंग ना करो, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आप आई और आपने वाकई मैम आई वुड सिट डाउन एंड टॉक टू यू अबाउट दिस बिकॉज आई बिलीव दैट आई कैन लर्न सो मच फ्रॉम यू, यू नो बंडल ऑफ आई वुड से knowledge. Any last words and about a little message that you have to give for the people out there who are now celebrating International Education Day today? सबसे पहले देखें, इट इज़ अ पेंडेमिक, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। अंडरस्टैंड दैट कि द इमोशनल स्टेट्स, द एंग्जाइटीज आर वेरी मच रियल। यू डोंट हैव टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस इज द लास्ट थिंग दैट शुड बी ऑन योर माइंड राइट नाउ। आप सर्वाइव करें। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ अपना आप को बचा के निकलना होता है। जिंदा रहेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, तो ही जिंदगी में कुछ करने के काबिल रहेंगे। तो आई कुडंट emphasize more on the mental health, not because I run a company for the mental health, but we are the first digital company that working on the preventive emotional care, because nobody talks about the prevention। जब किसी को mental disorder हो जाए तो भी हमारे पास इतनी scarcity है mental health professionals की। why not empower? this is why जो मेरा ये मैसेज होगा स्पेशली तारिक साहब को, और जबकि मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, कि प्लीज इमोशनल एजुकेशन को, एथिकल एजुकेशन को कोर करिकुलम का हिस्सा बनाएं। हम लोगों ने अभी एक कार्टून सीरीज बनाई है बच्चों के लिए, वही बात है गेमिफिकेशन, और उसके लिए जो बात ही उनको करती है कि हाउ टू डेवलप एम्पैथी, एंटी बुलिंग, ये जो बच्चों के इमोशनल रिजिलियंस के इश्यूज हैं। वी आर डूइंग दिस। करंट हमने सिलेबस बनाया है पूरा, उसकी वर्क बुक्स एंड इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के खेल खेल में उनको बता दें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सिमिलरली जो एडल्ट्स हैं उसके लिए हम लोग अपना मैगजीन लॉन्च करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल माई थिंग्स, इफ यू गो एंड सी thefeel.com, हमारा विद ट्रिपल ई, तो आप जाके देखिए सब फ्री है, कि खुदा के लिए ले लो। आई
all experts all around the world. So please, mental health is the should be the topmost priority. ना आपकी इस वक्त स्कूल ईयर पूरा करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए. लोगों की इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. जैसे कहते हैं ना, मैस्लो की थ्योरी है, बेसिक्स तो पूरी करें फिर हायर ऑर्डर की तरफ आ पाए. So that's my message, कि please take it seriously. We should be talking these kind of debates quite often. And thank you, Greenwich University, for giving me this chance to talk about my feelings. And you had been an amazing host, and it was wonderful to know you, Tariq Saab. Shazia says you're everywhere, but may listen first hand to you. Shazia ko to sunti rehti hain, hum unke fan bhi hain. I mean, she's such a sweet person. So it was such a pleasure to be among the star-studded panel. So I thoroughly enjoyed, and thank you so much for giving me so much time also. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much, Ms. Faryal. I would say thank you for highlighting a very pertinent point that was about mental health. So तारिक मैम की बात अगर मैं फॉरवर्ड लेके चलूँ, मैम फरियाल ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है कि हम लोगों की यहाँ करिकुलम में सब डाल दिया हमने, पीई डाल दिया, म्यूजिक डाल दिया, एक्रोबैट्स डाल दिया, कराटे डाल दिया, सब कर दिया. सर मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, mindedness, a proper mind person, it's still missing. It's still missing. बहुत कम स्कूल हैं जो PSHE जैसे टॉपिक को लेके चल रहे हैं. बहुत कम हो रहा है. आप मुझे बताएं सर, how much do you think that now it's the hour of need कि अब हमें इस करिकुलम पे आ जाना चाहिए? Ma'am Faryal is actually saying Yes, that ma'am. we have to follow her on the Facebook page, The Feel. And inshallah, Ma'am Faryal, we will. Thank you so much, Ma'am Faryal, for coming. I really appreciate it. मैं बहुत ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz. Yes, sir, Tariq. Now हाफिज. you may start. यस, यस यू आर राइट कि हमें इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. मेरे ख्याल से ये पेंडेमिक के बाद ये चीज़ें हमें ऑप्ट करनी पड़ेंगी अब. ये एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हमें इस पेंडेमिक में आया है ये, क्योंकि प्रीवियसली तो स्कूल के एकेडमिक्स और किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए और बच्चों को एंगेज्ड कैसे रखना है, हमने शायद बच्चों को एंगेज कुछ ज़्यादा कर लिया, उनको एक स्पेस प्रोवाइड नहीं की कि एक थोड़ा फ्री स्पेस मिले. क्योंकि ऑब्वियसली आपने ये देखा होगा कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक स्टडीज़ भी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. फिर उसके बाद फिर वो घर आ रहे हैं तो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल रही हैं. तो इस हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आज जो हम बच्चों में एक रेस्टलेसनेस देख रहे हैं, बच्चा सीट पे बैठता नहीं है, डिस्टर्ब्ड रहता है, एक डिप्रेशन बच्चों के अंदर डेवलप होता जा रहा है. तो ये सब चीज़ों के लिए वी हैव टू डू सम मेजर्स. और बल्कि राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि हमारी शायद इस तरफ फोकस नहीं था या प्रायोरिटी पहले नहीं थी. तो मेरे ख्याल से ये एक सेल्फ रियलाइजेशन मेरे अपने लिए भी है कि हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और इंशाल्लाह इन दिस पैंडेमिक हम इसको कोशिश करेंगे और इनसे भी हम कांटेक्ट करेंगे कि अगर ये हमें कुछ हेल्प आउट कर सकें, इसके अंदर कुछ गाइड कर सकें, तो हम इसमें कुछ एक पॉजिटिव स्टेप बच्चों के लिए ले सकें. क्योंकि हमने बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जैसे आप कह रहे हैं स्कूल्स में पहले सिविल डिफेंस नहीं था, सिविल डिफेंस आ गया. फिर आप कह लें कि बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने उनको सिविक सेंस के चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए. तो मेरे ख्याल से ये भी एक सेक्टर ऐसा है जिसको हमें फोकस करना चाहिए. थैंक यू सो मच सर तारिक. आई वुड से आपने बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेडनेस से हमारी बात सुनी और आपने इस बात को फॉरवर्ड लिया. दैट दैट शोज़ कि आप इस सेक्टर में कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आप रिफ्लेक्शन करते हैं जो भी बात आपको बताई जाती है. आई एम सो हैप्पी कि आपने बात सुनी और आप इस बात को आगे लेके चलेंगे. मैम बिल्कुल. शाजिया, emotional health and mental health is something that's way important. Yes. Recently, I was in one of the panel in which we were discussing emotional intelligence as well, and we talk about mental health as well. Ma'am, आप भी टीचर हैं, आपने खुद देखा कितना बड़ा अप्स एंड डाउन्स. कभी कभार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यू जस्ट वांट टू क्लोज द लैपटॉप एंड जस्ट वांट टू टेक अ डीप ब्रीदर. क्या बहुत हो गया, नोबडी इज लिसनिंग, क्या हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा. मैम, how do we circumface from this now? What do you think that the preventive measures for teachers? Because देखिए मैम, कोई टीचर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा. सब बेशक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर ने भी बहुत फेस करा. घर में भी Exactly. देखना, बाहर भी देखना, लाइट चली जाए, मैसेज करना. इट वाज जस्ट हेक्टिक. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वो तो बात बिल्कुल सही है. मैं इसी पे आने वाली थी कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ, सबसे पहले तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है.
If you remember, I don't know whether you attended or not, in 2019 May, we at Greenwich University, we organized a conference of around 500 teachers, US Embassy ke saath milke. And the first thing I said to all the teachers who were sitting, I said, if you are not a compassionate teacher, just leave your job right now. Now, अब ये सारी इमोशनल जो आपकी बैलेंसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स का। आप छोटा बच्चा है, हम ये समझते हैं कि अगर वो प्राइमरी या केजी का बच्चा है, वो ही इज वेरी सेंसिटिव, ही वो यूं चुटकियों में आपके जो फ्राउन होता है ना, आपके यूं आपने किया नहीं, वो समझ जाता है कि टीचर का मूड आज अच्छा है कि नहीं है. सो वेन एवर वी आर इन द क्लासरूम, whenever we are in front of the students, we need to keep all our problems aside. ठीक है, लेकिन human beings हैं, होता है. So और कुछ by nature भी कुछ ऐसे unfortunately teachers होते हैं, those who are those who shouldn't be in that profession. वही बात है कि teachers के लिए बहुत ज़रूरी है compassionate होना, बहुत ज़रूरी है. सो टीचर, इसीलिए टीचर्स ट्रेनिंग पे जो बहुत जोर दिया जाता है कि टीचर्स ट्रेनिंग आई थिंक आफ्टर एवरी 2-3 months, बिकॉज एक चीज हैमर होती है ना, हमारे हैमरिंग हो रही है, तो वी ट्राई टू अडॉप्ट दैट, वो एक ब्रेन वॉशिंग सी होती चली जाती है. दैट्स वाई पूरी दुनिया में टीचर्स ट्रेनिंग पे इतना जोर है जिसका कोई हिसाब नहीं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह टीचर्स ट्रेनिंग नहीं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती, और उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं. जैसे सॉफ्ट स्किल्स है, आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो सॉफ्ट स्किल्स ही सारी ये चीज़ें आप में इनकलकेट करता है ना, कि टीचर्स को किस तरह आपने टीचर्स की वेलबींग को किस तरह देखना है, उसकी इमोशनल वेलबींग को किस तरह, उसकी मेंटल हेल्थ. अगर एक टीचर परेशान है तो वी शुड गिव हिम और हर स्पेस कि ठीक है, कोई नहीं, टेक योर टाइम. वी नीड टू मेक people lives easier for them, not to have that saddest attitude कि नहीं 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 तुम यहाँ पे हो ना, तुम 6 घंटे तो तुमने तुम्हारे फ्री पीरियड है, नहीं तुमने रहना इधर ही है. We need to give the space, breathing space लोगों को देनी है, and this is a must. और नो डाउट अबाउट इट, हमारे यहाँ सोशल मेंटल हेल्थ पे काम बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, टीचर्स की मेंटल हेल्थ एंड स्टूडेंट्स की. और टीचर्स की इसलिए कि टीचर्स 6 से 8 घंटे वो स्कूल में होती है, 45 मिनट्स एक क्लास में, 45 मिनट्स दूसरी क्लास में. यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड दे आर लाइक वी आर स्पेंडिंग 3 hours इन वन क्लास. सो वी नीड टू वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ. हमें इस तरह की वर्कशॉप्स यूनिवर्सिटी में भी करनी चाहिए, स्कूल्स में भी करनी चाहिए, कि हम, और वही बात है कि बार बार इस चीज़ पे हम जोर देंगे तो हम उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू बी. आप देखो कि वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट अमेरिकन स्कूल, ज़्यादातर, मोस्टली, नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली अगर आप जाते हो ना, मैंने बहुत विजिट किया और देखा कि दे आर ऑल द टाइम स्माइलिंग. स्माइल, the first thing you have to do is just a smile. हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि वो बाजार से भी गुजरते थे ना, तो वो स्माइल होती थी उनके चेहरे पे. हमारे यहाँ टीचर्स मुंह बना के बैठी होती हैं, मतलब दे हैव टू उनका अटायर, ये नहीं हम कहते हैं कि जी बहुत उनकी ग्रूमिंग पे काम नहीं होता है. आई थिंक तारिक शाह वुड एग्री विद दैट कि वी हैव टू वर्क ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द टीचर्स, कि भाई मुस्कुराने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, एक मुस्कुराहट के साथ आप क्लास में एंटर हो और मुस्कुरा के बच्चों से बात करो. सो दैट इज गोइंग, आप देखना कि बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इम्प्रूव करता है. दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैंने आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट 28 years. शुरू से लेके आज तक की जो जर्नी है, मैंने उसमें यही सीखा कि मुस्कुराना सबसे बड़ी चीज एक टीचर के लिए है, कि यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस. उससे आप देखना कि आपके बच्चे की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है. So you need to do that. I would say कि हमने आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखा और हमेशा हम लोग के साथ बैठकर बातें कर कर मैंने आपको बहुत लाइवली देखा, और ये बात बहुत कम टीचर्स में होती है, स्पेशली क्योंकि सर आप भी एग्री करते होंगे, जब हम लोग सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगते हैं ना, जैसे बड़े बच्चों को, तो हमारे अंदर एक वो आ जाता है, थोड़ा बहुत सीरियसनेस आ जाता है. बट इफ आई टॉक अबाउट मिस शाजिया वाज विद अस ऑल द टाइम. हम सबका एक बैठक, कोई बहना मिस शाजिया हमारे साथ बैठेंगी, बात करेंगी, she would sing with us, she would smile, she would say, "आज वो सब काम करते हैं." These small bits
add up to a teacher. They add up to a Yes. student's confidence in a teacher. And thank you Yes. so much, Ms. Shazia, for being one of those that made us who we are today. And I'm so happy that I got an opportunity. My hosting career started off by Ms. Shazia, that, she told me that start off with reimaging education. And somehow I believe that it has changed my life, changed my profession as well. So I salute you as well for that. Thank you. No, no, no. Thank Um, you so much. so Tariq and Miss Shazia and Ma'am Faryal, you guys all had amazing, what should I say, insights about it. One last message that you would give to all the people listening, that how can you make a change in education starting from today? Because again, her day is a new beginning, right? So what is that one change that you can bring to become a better educationist, to become a better teacher or a student? Anything that you guys want to say, the stage is yours. I'll give you, Sir Tariq, the first go, that आप बताएं, what is your message? बिल्कुल देखें, इसके अंदर एक तो मैसेज ये है कि एजुकेशन इज ऑलवेज अ ट्रायंगल, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट. तो वी ऑल हैव टू रियलाइज कि एवरीवन इज सिंसियर टुवर्ड्स द गोल, कि हमें बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है. तो इसके जब हम सिंसियर हैं, जब हम एक मोटिवेटेड हैं, तो फिर हमें सबको मिलकर काम करना है. सेकंड चीज ये है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स. ये अगर सब सोच लें कि इवन टीचर और पेरेंट, कि अगर टीचर ये सोच ले कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो शायद उसका लास्ट डे होगा. उसको कंटिन्यू करना है, सीखना है, और उसके लिए नया गोल है हर दिन. जैसे हम एक स्कूल ओनर्स को कहते हैं कि हर दिन एक नया चैलेंज है, तो ऐसे ही टीचर के लिए हर दिन एक नया लर्निंग स्टेज है. वो बच्चों की साइकी समझ रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे आगे लेकर चलना है. करिकुलम इज समथिंग एल्स, वो एक तो है ही, वो तो डेवलप हो रहा है. आपको उस इस कैरेक्टर के अंदर भी आना है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है. ये बहुत अच्छी बात है कि योर टीचर्स वर वेरी फ्रेंडली. और जहाँ तक मिस शाजिया की बात है, हमने हमेशा इनके साथ, हम भी बहुत फ्रैंक रहे हैं, और हमारा इंटरेक्शन जो है हमेशा अच्छा रहा है. और हमेशा ये भी जो है ना एप्रिशिएट करती रहती हैं एज अ फ्रेंड. जो है ये हमें जो भी हमारी चीजें होती हैं, उसको फौरन से इनका रिप्लाई आता है कि भाई वेल डन, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. तो इसी तरह से हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कि बच्चे जो हैं अगर छोटी सी भी एक चीज करें, तो उनको पहले अप्रिशिएट करें. पहले हमारे यहाँ बिल्कुल बात सही है कि टीचर्स के एक जो एटीट्यूड होता है, वो ये होता है कि भाई पहले डांटना डपटना, और टीचर्स जो है ना बच्चों को स्ट्रिक्ट रखना. बच्चों को की बात अगर कोई गलत भी है ना, तो उसको पहले एप्रिशिएट करें, फिर उसकी गलती उसको बताएं. तो वो थोड़ा इंकरेज होता है कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया है. उसके बाद फिर हाँ, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, जो मैं सही कर सकता हूँ. तो अगर सब एक चीज ये सोच लें कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने चीजों को डेवलप कर सकें. थैंक यू सर तारिक, आई रियली अप्रिशिएट, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया. आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, थैंक यू. एंड कमिंग आउट ऑफ दैट स्केड्यूल इट्स वेरी हार्ड, बट you've given us your time, you've given us great insight, and I'm so happy to see a person at your sitting at your level talking about how reflective he is and how much he has seen people changing. I have to salute you for that. That I really नो, थैंक appreciate यू. it. Thank you so थैंक much, यू. sir. इससे पता चलता है कि there are people working in the private sector. हमेशा हमें ना शिकायत होती थी कि कोई काम नहीं करता, but now my perspective has changed after looking at you. मिस शाज़िया, आप मुझे बताएं, what is that one message that you want to give to all the educationists? ओके, मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज विच आई ऑलवेज गिव इज try to be humble, try to be compassionate, and try to be a good person. जैसे तारिक ने कहा ना कि करिकुलम होता रहेगा यार, करिकुलम पढ़ाना है ना, वो किताबें, किताबी जो नॉलेज है वो तो आप देते रहोगे. यू वी मैंने जैसे कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी कैन मेक और ब्रेक अ चाइल्ड. अ टीचर कैन मेक और ब्रेक अ चाइल्ड, वेदर वो कोई छोटा मॉन्टेसरी का बच्चा हो या मास्टर्स का बच्चा हो. आपने उसके इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, आपने उसकी हर तरह से you are the mentor. You have to listen to that person so that he can share with you all his problems, all his, छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, जो टीनेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो वो सब आपको सुननी है. यू शुड बी दैट स्पॉन्ज जो आप एब्जॉर्ब करो और फिर उनके सोल्यूशंस दो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एजुकेशनिस्ट. दूसरी बात ये है कि हम सब एजुकेशनिस्ट को
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि change is the only constant. We must adopt and adapt change, whatever change comes to our way, be it in the form of technology, be it in the form of new pedagogies. We need to adopt all these changes in order to be at par with those nations who are developing so fast. फिनलैंड है, नॉर्वे है, वो लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं? 4 दिन वो बच्चा स्कूल जाता है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, इवन जो लाइक कंपनीज में काम करते हैं, वो 4 दिन जाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी इतनी बढ़ गई है। तो किस तरह कर रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन देयर मेंटल हेल्थ पे वो काम करते हैं, वो उनकी हर चीज को वो फुल पैकेज होता है वो। सो यू नो वी नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो थैंक यू सुंदर, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यू नो, हम जब भी तारिक से मिले हैं बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि at such a young age, I must commend that at such a young age, Tariq is doing a wonderful job. He is mashallah doing a wonderful job. ये कभी कहीं होते हैं, कहीं होते हैं, कहीं होते हैं, and it's not easy. पता है, देखने में बड़ा आसान लगता है, but it's not easy इन सारी चीजों को हैंडल करना. So thank you so much, Sundar. Thank you, Greenwich University. Love you all. Thank you so much, Ms. Shazia. Thank you so much, Sir Tariq. This was a little initiative that we took on the International Education Day. Talking about education, I need to say this that is very important, and I would say a very pertinent, heartfelt thing. I salute all the educationists. I know बहुत से problems हुए, I know बहुत सी परेशानीज हुई, but thank you so much to all my teachers, all my mentors who were always there, who were always listening to us, who were just a call away. हम रात को परेशान हो जाते थे, assignments नहीं बन पाते थे, हम मिस को कॉल कर लें, हम सर को कॉल कर लें. They were just like, don't worry, do it, be easy. To the teachers who were humble enough to lessen the curriculum for us, tell us कि नहीं इतना कर लो, इतना नहीं करो. It actually reflected a lot. बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा. स्पेशली आई वुड टेक दिस इनिशिएटिव एंड थैंक ग्रेनिच यूनिवर्सिटी कि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ up till now, we have had our online sessions, we have had trainings, we've had our different webinars in which our goal of making education bridge the gap has been achieved. We are trying our level best, we are still giving students and teachers the trainings that were there. We started our B.Ed program just after the pandemic by looking at the situation of how much is a par need or a great need in education that we can build this forward. And I'm so happy that the B.Ed program went well. ग्रेंच यूनिवर्सिटी, सर मैं आपको बताऊं, सतारशा आप भी ये बिल्कुल अपने colleagues में बताइएगा, हमारी university is one of those universities who is giving 50% scholarship to the B.Ed students as well, to the teachers who want to get trained. We are giving 50% scholarship to them, and we don't have, even are charging any admission fee or something. We did give 10% off to them as well, कि किसी तरह से teachers can learn and grow in their career. So I would say कि मेरी university, and I'm very proud that they took the initiative, they gave us the space, and they made us who we are today. And Alhamdulillah, very proud Grenadian here. I will just end off with this small, what should I say, message. As being a teacher, that the best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see. Reflect on this. Thank you so much, everybody. Happy International Education Day. And I hope we all come out of this pandemic smiling and optimistic and with better goals and Inshallah. opportunities. Thank you